السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں جھگڑا تکرار کے بارے میں۔ جھگڑا تکرار کیوں ہوتا ہے اور جھگڑا تکرار کسے کہتے ہیں؟ بات بات پر ساس سسر اور بہو یا شوہر یا عام مسلمان مردوں اور عورتوں سے جھگڑا تکرار کر لینا یہ بھی بہت بری عادت ہے اور گناہ کا کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھگڑالو آدمی خدا کو بے حد ناپسند ہے۔ جو بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑا کر لیتا ہے یہ بہت ہی برا کام ہے اور اللہ کو یہ بے حد ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے یا مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو سہولت اور معقول گفتگو سے معاملات کو طے کر لینا نہایت ہی عمدہ اور بہترین عادت ہے۔ جیسے کہ جب دو آدمی یا تین آدمی ایک جگہ پر رہیں گے تو سب کی مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں کچھ فرق رہے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اگر کبھی کوئی بات بن ہی جائے، اگر کوئی بات بگڑ جائے تو ایسے موقع پر معقول گفتگو سے معاملات کو سلجھا لینا چاہیے اور بگڑی ہوئی بات کو بنا لینا چاہیے۔ جھگڑے تکرار کی عادت کمینوں اور بدتمیز لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ عادت انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑی مصیبت ہے، کیونکہ جھگڑالو آدمی کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر شخص کی نگاہوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے جھگڑے کے ڈر سے اس کو منہ نہیں لگاتے، اس سے بات نہیں کرتے۔ اب جو بھی سماج میں جھگڑالو آدمی رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگ ان سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بات کہی جائے تو یہ پھر باتوں کو بڑھائے گا اور پھر جھگڑا کرے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے دور ہی رہا جائے۔ تو لوگ ان کی عادت کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ان کی آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جو پہلے ایک محبتانہ زندگی گزار رہے تھے لیکن جھگڑے کی وجہ سے لوگ دور ہوتے جاتے ہیں اور ان سے ڈر کے ان سے جو ہے منہ نہیں لگانے چاہتے ہیں۔ ان سے بات کروں گا تو یہ پھر جھگڑا کرے گا اس وجہ سے۔ اسی طرح آپ بات کرتے ہیں کاہلی کے بارے میں کہ کاہلی کیا چیز ہے۔ یہ ایسی منحوس عادت ہے کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں دوسری خراب عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کاہلی کی وجہ سے، سست کی وجہ سے، یہ ایسی بیماری ہے نا کہ اس کی وجہ سے دوسری کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مکان، سامان، کپڑوں اور بدن کی گندگی، برتنوں سامانوں کی بے ترتیبی، وقت پر کھانے پینے سے محرومی، شوہر اور سسرال والوں سے ناراضگی، بچوں کا پھوہڑ پن، طرح طرح کی بیماریاں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری بلائیں اور مصیبتیں اسی کاہلی کے سب انڈے بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو انسان کے اندر کاہلی کی بیماری ہے اس سے پھر طرح طرح کی بیماریاں نکلتے جاتی ہیں۔ نہ ہی وہ سامان کو صحیح طریقے سے رکھیں گے، نہ ہی کپڑوں کو صحیح سے صاف کریں گے، نہ ہی صحیح طریقے سے رکھیں گے، نہ ہی بدن کی صفائی، نہ ہی برتن کی صفائی اور ترتیب سے رکھیں گے، نہ ہی ساس سسر سے کوئی طریقے سے بات کریں گے، بلکہ وہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے ان کے یہ سب بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ غور و فکر کیے ہوں گے، اگر آپ کے پاس کوئی اگر ایسا انسان ہے، اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو اگر سماج میں ہے ایسا کوئی انسان کہ جو سست کرتا ہے، وہ ہر کام میں دیر کرتا ہے، ہر کام میں نہ صبح وہ ٹائم سے اٹھے گا بلکہ دیر سے اٹھے گا۔ اگر وہ نمازی شخص ہے اور سست ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے، وہ یہ سوچے گا اب اذان ختم ہو جائے، اذان ختم ہو گئی، اب وہ یہ سوچے گا اب یہ گیم کھیل لوں یا اس سے بات کر لوں یا پھر یہ جو چھوٹا کام ہے یہ کام کر لوں، اور ایسے کرتے کرتے پھر آخر میں جب وہ نماز کو پہنچتا ہے تب تک پتہ یہ چلتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے یا پھر نماز ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو سست کی وجہ سے جماعت بھی چھوٹی اور ایسے لوگوں کی نمازیں پھر جو سست کرے نماز میں پھر ان پر اللہ کا بہت ہی بڑا پھر عذاب نازل ہوگا اور آخرت میں پھر انہیں پھر سزا بھگتنا پڑے گا۔ تو سست والے لوگ بالکل بھی کوئی بھی کام میں کامیاب ہو یہ بہت ہی مشکل ہے، وہ ہر کام میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اس عادت کو ہرگز اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ دینی و دنیاوی کاموں میں ہر وقت چاق و چوپند ہو کر لگے رہنا چاہیے۔ خوب یاد رکھو کہ محنتی آدمی ہر شخص کا پیارا ہوتا ہے اور کاہل آدمی ہر ایک ڈر سے پھٹکارا جاتا ہے اور ہر کام میں مار پڑتی ہے۔
काहिल आदमी ना दुनिया का काम कर सकता है ना दीन का। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली, यानी ये अल्लाह मैं काहिली से तेरी पनाह मांगता हूँ। जो भी इंसान काहिली और सुस्ती करता है उसे कोई लोग पसंद नहीं करता। अगर कहीं पर जाता है तो उसे मनहूस के नाम से पुकारते कि आ गया मनहूस अब, और फिर काहिली कि हाँ ये काहिल इंसान है, इससे कोई काम जल्दी फुर्तीला होता ही नहीं है। जब कहीं पर बुराई की बात की आए या फिर किसी को बदनामी करने की बात की आए तो वहाँ पर जो काहिल इंसान रहता है ना उसका जिक्र किया जाता है कि वो इंसान इतना काहिली है, इतना सुस्त है कि उनके पास कामयाबी की चीज़ आने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाया, इस वजह से कि वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त है, कोई भी काम में लेकर वो जल्दीबाजी नहीं करते। या और फिर जो फुर्तीला रहता है उसे सारे लोग पसंद करते हैं। अगर घर में 4 5 6 बहू है, उसमें जो ज़्यादा फुर्तीली रहती है उस बहू की ज़्यादा तारीफ़ होती है, उसकी ज़्यादा इज्जत होती है। और जो सुस्ती है वो खाती है और खाने के बाद फिर सो जाती है, टाइम से उठती नहीं, टाइम से कोई काम करती नहीं। इस वजह से लोग उनको फिर अच्छा नहीं बोलते और उनका नाम फिर बुराई में शुमार हो जाती है। इस वजह से हर इंसान को चाहिए कि काहिली बिल्कुल ही ना करे, क्योंकि काहिली बीमारियों की भी जड़ है जो काहिली करता है। क्योंकि काहिल इंसान कैसा होता है, कोई भी काम आहिस्ता आहिस्ता करेगा, है ना, जल्दीबाजी नहीं करेगा, चलेगा भी बहुत स्लो चलेगा। अगर कोई काम करना हो, खाना पकाना हो, बहुत धीरे धीरे, बर्तन धोना हो, बहुत धीरे धीरे ऐसे कामें करते हैं। कहीं पर अगर मर्द को कहीं पर जाना हो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, खेत में काम करने जाना हो तो आहिस्ता आहिस्ता करेगा। तो आहिस्ते काम करने की वजह से उनके जिस्म ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो फास्ट नहीं चलते हैं, जिसके वजह से जिस्म का हर जो पार्ट है वो हिलता भी नहीं, पेट में गैस वगैरह भी बनता है और फिर तरह तरह की बीमारियां होती है। और जो चुस्त आदमी है, जो फुर्तीला आदमी है, चलेगा भी तो फास्ट चलेगा, काम करेगा तो तेज़ी के साथ काम करेगा, उसका काम भी ज़्यादा होगा, वो पैसा भी ज़्यादा कमाएगा, वो तरक्की भी ज़्यादा करेगा और फिटनेस भी ठीक ठाक रहेगा, बॉडी जिस्म वगैरह से ही सलामत रहेगी। और ये काहिली ऐसी बीमारी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह मैं काहिली से तेरी पनाह मांगता हूँ। अब इस बात में सोच सकते हैं कि काहिली कैसी बीमारी है, क्योंकि काहिली नाकामी का जड़ है। अगर कोई इंसान कामयाब होना चाहिए तो फिर उसे ये काहिली सुस्ती की बीमारी भगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कामयाब होना बहुत ही उसके लिए मुश्किल है। अब बात करते हैं ज़िद की। अपनी किसी बात पर इस तरह अड़ जाना कि कोई लाख समझाए मगर किसी की बात और सिफारिश कबूल ना करे, इस बुरी खसलत का नाम ज़िद है। ये इस कदर ख़राब और मनहूस आदत है कि आदमी की दुनिया व आखिरात को तबाह व बर्बाद कर डालती है। ऐसे आदमी को दुनिया में सब लोग ज़िद्दी और हट धर्म कहने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे ज़िद करते हैं इतना ख़तरनाक कि वो किसी की भी सिफारिश को कबूल नहीं करती, किसी की भी बात को वो मानते ही नहीं, चाहे सामने कितने बड़े आदमी क्यों ना हो जाए, है ना। उसे फिर क्या कहेंगे, ज़िद्दी कहेंगे, हट धर्मी कहेंगे। और ये चीज़ क्या करती है, दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ों को तबाह कर देती है। क्योंकि दुनिया इसलिए वो तबाह करती है कि ऐसे लोगों से लोग करीब नहीं जाते, ऐसे लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करता है। और आखिरत तबाह इसलिए करती है कि जो इंसान ज़िद करता है तो ज़िद करने की वजह से उनसे सब लोग नाराज़ हो जाता है कि ये किसी की सुनता नहीं है, इसके पास जाना, इससे बात करना ही बेकार है। माँ बाप भी नाराज़ हो जाते हैं, अगर औरत है तो उसके शौहर भी नाराज़ हो जाते हैं, है ना। तो सब लोग नाराज़ हो जाते हैं। अब जब सब लोग नाराज़ हो जाएंगे तो फिर अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा। और अगर सब लोग राज़ी है, माँ बाप भी राज़ी है, शौहर भी राज़ी है, तो फिर ऐसे लोगों से अल्लाह भी राज़ी है। और कोई भी उसका मुँह लगाने और उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। यही वो खबीस आदत थी जिसने अबू जहल को जहन्नम में धकेल दिया कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मोमिनों ने उसको लाखों मरतबा समझाया और उसने शक्ल कमर और कंकरियों का कलमा पढ़ने का मोजज़ा भी देख लिया, मगर फिर भी अपनी ज़िद पर अड़ा रहा, है ना। जो इंसान ज़िद करते हैं उसका मुंह कोई नहीं लगाते, यानी उससे बातचीत जल्दी कोई करने नहीं जाते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इनसे बात की जाए ज़्यादा और कोई बातों पे अगर ये ज़िद करना शुरू कर दे तो फिर ये किसी के नहीं सुनता है, तो बेहतर है कि इससे दूरी ही बनाई जाए। और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये ज़िद, है ना, ये घमंड, ये तकब्बुर इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो अबू जहल को जहन्नम में बनाया, जहन्नम में धकेला।
क्योंकि अबू जहल अपने आँखों से देखा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली के इशारे से चाँद को 2 टुकड़ा किया था। शक्ल कमर है ना, यानी चाँद को तोड़ दिया था, 2 टुकड़ा में तकसीम कर दिया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कंकरियों ने अबू जहल एक मरतबा अपने हाथों में कंकर लेके पत्थर रख के वो पूछा था कि ये भतीजे बता, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा मैं बताऊं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, या फिर जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है वो खुद बता दे। तो अबू जहल ने क्या कहा फिर कि अगर मेरे हाथ में जो चीज़ है अगर ये बताए तो और अच्छी बात है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने हाथों को कान में लगाओ। जब वो कान में लगाया तो उसमें से कलमे की आवाज़ें आई। उसके बावजूद भी अबू जहल कलमा नहीं पढ़ा और अपने ज़िद पे अड़ा रहा और ईमान न लाया, और फिर वो वासिल जहन्नम हो गया, यानी वो जहन्नम में गया। कुरान और हदीस में यह हुक्म है कि हर मुसलमान मर्द व औरत पर लाजिम है कि अपने बुज़ुर्गों और मुखलिस दोस्तों का मशवरा ज़रूर मान ले। मुसलमानों की जायज़ सिफारिश को कबूल करके अपनी राय और अपनी बात को छोड़ दे, और हक़ ज़ाहिर हो जाने के बाद हरगिज़ अपनी राय और अपनी बात पर ज़िद करके अड़ा ना रहे। बहुत से आदमी ख़ास तौर से औरतें इस बुरी आदत में मुब्तला है। खुदा के लिए उन सब को चाहिए कि इस बुरी आदत को छोड़कर दोनों जहां की सादतों से सरफराज हों। कुरान हदीस का हुक्म क्या है कि जब कोई मुसलमान मर्द औरत पर ये लाजिम है कि जब वो ज़िद पर आ जाए तो उनका जो बुज़ुर्ग है या फिर जो मुखलिस दोस्त है, जिनके दिल में खौफ खुदा है, जो नेकी की दावत देता है, जो हमेशा भलाई की ही बात करता है, अगर ऐसा दोस्त, ऐसा शख्स अगर कोई बात कहे तो जो ज़िद कर रहा था उसे चाहिए कि अपने ज़िद को तोड़ दे और जो नेक पारसा दोस्त है इनकी बातों को मान ले। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान गलत बातों पर ज़िद में अड़ा रहता है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि नहीं मैं गलत बात पे हूँ, सच तो कुछ और है जो सामने वाला कह रहा है, उसके बावजूद भी वो हारना नहीं चाहता कि मैं अगर उनकी बात को मान जाऊँ तो मैं फिर हार जाऊँगा। इस वजह से फिर वो ज़िद पे अड़ा रहता है। तो ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। जब मालूम हो गया कि मेरी बातें गलत है, सामने वाला जो है कह रहा है वो सही है, तो ये बात को मान लेने ही में भलाई है और लोगों के अंदर ये इज़्ज़त भी पाई जाएगी। अगर नहीं मानेंगे तो लोग भी यही कहेगा कि उसके सामने जो हक बात है वो कहने के बावजूद भी वो नहीं माना, वो इंसान अच्छा नहीं है, उसको फिर अच्छे इंसानों में शुमार नहीं किया जाएगा। ये बातें जल्दी नहीं मानती है और फ़ख्र के साथ ये सहेलियों में, फ्रेंड में ये कहती फिरती है कि मुझे कोई नहीं मना सका, मेरा ज़िद इतना ख़तरनाक है कि मुझे कोई मना ही नहीं सकता है। इस तरह की बातें बोलती है। हालांकि ऐसा चाहे मर्द हो चाहे औरत हो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बुरी आदत है। उन सब को चाहिए कि ये बुरी आदत छोड़कर दुनिया व आखिरात के सरफराज से माला माल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।